ایک نئی غزل سناؤں گا سب سے پہلے بہت ایمانداری سے. آپ لوگ بھی بہت ایماندار ہیں. ایمرجنسی کے زمانے میں ایک مرتبہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے. تو صبح پولیس اسٹیشن سے بلاوا آ گیا میرا اور کہا کہ اچھا سرکار کو آپ چور کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی نہیں سرکار، میں نے سرکار کو چور کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے. وہ تو وہ ایمرجنسی کا زمانہ تھا، بڑے احتیاط کے مراحل تھے. اب کم سے کم ایسے حالات نہیں، اب ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں سارے چور. ملاحظہ فرمائے، از کیا ہے کہ لوٹ مچی ہے چاروں اور سارے چور. لوٹ مچی ہے چاروں اور سارے چور، ایک جنگل اور لاکھوں مور. یہ سارے چور جب آئے موقع تو سارے چور آپ بولیے، تب مزہ آئے گا غزل کا پڑھنے میں اور سننے میں. لوٹ مچی ہے چاروں اور سارے چور، ایک جنگل اور لاکھوں مور. سارے چور ایک تھیلی میں، افسر بھی چپراسی بھی. ایک تھیلی میں افسر بھی چپراسی بھی، کیا طاقتور کیا کمزور. کیا طاقتور کیا کمزور. سارے چور اجلے کرتے پہن رکھے ہیں سانپوں نے. واہ واہ واہ. یہ مزہ لیجیے گا. اگر میں کچھ بھی سناؤں گا، جو کچھ بھی سناؤں گا شاعری کے حوالے سے، تو آپ غور کیجیے گا کبھی نہ کبھی فرصت اگر مل جائے تو کہ کہیں نہ کہیں پہ شاعری ضرور ہوگی. عرض کرتا ہوں کہ کیا طاقتور کیا کمزور، سارے چور اجلے کرتے پہن رکھے ہیں سانپوں نے، یہ زہریلے آدم خور. سارے یہ زہریلے آدم خور، یہ زہریلے آدم خور. سارے چور سارے چور. جھوٹ نگر میں روز نکالو مون جلوس. جھوٹ نگر میں روز نکالو مون جلوس. کون سنے گا سچ کا شور. سارے چور کون سنے گا سچ کا شور. سارے چور. ہم کس کس کا نام گنائیں، راحت خان دلی کے آوارہ ڈھور. سارے آئیے آئے. آپ ہی کے لیے سب وقت بچا سکتا ہوں. صاحب ایک اور بہت ایمانداری سے غزل پڑھتا ہوں، یہ بھی بالکل تازہ. میرے احباب بھی، میرے جو ساتھی شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی پہلی مرتبہ یہ سنیں گے. اس غزل کے 4-5 شعر اور پڑھتا ہوں. چونکہ میں نے غزل پڑھی بھی ہے اور غزل پڑھائی بھی ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ اچھی شاعری کیا ہوتی ہے. تو اب ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے. یہ 4-5 شعر پڑھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں شعر ضائع نہیں ہوتا. عرض کرتا ہوں ملازم. عرض کیا ہے کہ سایہ سایہ دھوپ پہن کر آتا ہے. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. سایہ سایہ دھوپ پہن کر دھوپ پہن کر آتا ہے. موسم جب ذہنوں سے باہر آتا ہے. واہ واہ. نہیں مزہ نہیں آیا. سب اوپر آسمان پہ چلا گیا خدا کی طرف. یہاں ذہن کا مطلب ذہنیت ہے، اور وہ ذہنیت بھی گندی اور سیاسی ذہنیت. عرض کرتا ہوں کہ سایہ سایہ دھوپ پہن کر آتا ہے. موسم جب ذہنوں سے باہر آتا ہے. بھوکے بزدل شیر سجا کر پنجروں میں. اب آئیے آپ. بھوکے بزدل شیر سجا کر. اب کیا ہے کہ بھوکے بزدل شیر سجا کر پنجروں میں ایک سرکس
इस शहर में अक्सर आता है। वाह भूखे बुज़दिल शेर सजाकर पिंजरों में एक सर्कस इस शहर में अक्सर आता है। अब इस शेर की हिफाजत कीजिएगा, एक कीमती शेर पढ़ रहा हूं। एक सर्कस इस शहर में अक्सर आता है, टूट रही है मुझ में हर दिन एक मस्जिद। टूट रही है ये इसकी मुझ में हिफाजत हर कीजिएगा, दिन शेर की एक अलामत को एक इस्तिआरा बनाया है, गजल बनाने की कोशिश की इस मजमून को। एक सर्कस इस शहर में अक्सर आता है, टूट रही है मुझ में हर दिन एक मस्जिद। इस बस्ती में रोज दिसंबर आता है, टूट रही है मुझ में हर दिन एक मस्जिद, टूट रही है मुझ में हर दिन एक मस्जिद। इस बस्ती में रोज दिसंबर आता है, और यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं। हमको भी सांपों का मंतर आता है, यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंतर। जो वाकया है ये अजीबो गरीब क्राफ्ट है, ये जो मिसरा मैंने बनाया है ऐसा लगेगा कि किसी जाहिल ने लिखा है, लेकिन जाहिल ने नहीं लिखा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने लिखा है। बस क्या है कि ये वाकया है, इसे वाकई में रहना है। ये वाकया है, इसे वाकई में रहना है। ये वाकया है, जो वाकया है उसे वाकई में रहना है। ये बागपन तो मेरी शायरी में रहना है, ये बागपन तो मेरी शायरी में रहना है। और तुझे गुरूर कि तेरी यहाँ हुकूमत है, मुझे भी जिद कि इसी बंबई में रहना। वाह 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 वाह, तुझे अच्छा है, गुरूर बहुत अच्छा है, वाह वाह। कि तेरी यहाँ हुकूमत है, मुझे भी जिद कि इसी बंबई में रहना है। कि हमें बुझाना पड़ेगा कई चिरागों को, हमें बुझाना पड़ेगा कई चिरागों को, वो साथ आए जिसे रोशनी में रहना। वाह वाह वाह। असल में इसी बंबई में रहना है। अर्ज करता हूं कि दिल जो तेरा, ये बैठ जाओ मेरे भाई, 10-15 आदमी अब 2 बजे जाके कर भी क्या लेंगे यार, और जो करना है 2 बजे वो 2:30 बजे कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। अर्ज करता हूं कि मुलाहिजा फरमाए, अर्ज क्या है कि दिल जो तेरा आईना है, दिल जो तेरा आईना है, तोड़ डाला जाएगा। दिल जो तेरा आईना है, तोड़ डाला जाएगा। आज इस मस्जिद से एक काफिर निकाला जाएगा, आज इस मस्जिद से एक काफिर निकाला जाएगा। और ये पता कर लीजिए दुश्मन का दुश्मन कौन है, ये पता कर लीजिए दुश्मन का दुश्मन कौन है। अब इसी कांटे से ये कांटा निकाला जाए, ये पता कर लीजिए दुश्मन का दुश्मन कौन है। अब इसी कांटे से ये कांटा निकाला जाए। साहब ये गजल का मुझे बार बार कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है 2-1 मुशायरे के बीच गुजरने के बाद पढ़ी थी मैंने, लेकिन वो हजरात कि जो अमूमन मुशायरों में शिरकत करते हैं उनके लिए इस गजल में मैं 2-3 शेर नए पढ़ूंगा ताकि बारे समात ना हो लोगों पर। अर्ज करता हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो,
चांद थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, वाह कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नया शेर पढ़ता हूँ बंबई वालों, अर्ज करता हूँ कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले, हमारे मुंह बहुत से अच्छा जो निकले वही सदाकत है, वाह हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, मैं जानता हूं। ये भी नया शेर है और बहुत ही महीन कटिंग है इसमें, अच्छा जरा सा मजा लीजिए। अर्ज करता हूं कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कि कम- दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी, बहुत अच्छा है, वाह वाह हमारी तरह क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह राहत साहब, कोई मामला वाह, हो जाता है, वाह ट्यूबलाइट वाला मामला हो जाता है, ट्यूबलाइट जरा देर में उठती है, बल्ब लगाया फौरन चला जाता है। अब आपको थोड़ी देर समझते हो, फिर सोचते हो, फिर कहीं फैसला करके हाँ ठीक अच्छा सुना है तो वाह 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 कर दे। नहीं, जब तक मैं खड़ा हूं तो आप ये समझो कि जो पढ़ रहा हूं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं मैं, फैसला करते रहना, कल परसों 2-4 हफ्ते का अच्छा था कि बुरा था, अभी तो मुशारा सुनो यार, आज करता हूं सुने। मैं ये कह रहा था कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। अभी अपने मोहतरम मिसबा आलम साहब के काम का शेर है। हाँ अच्छा, वो एक ही जैसे लगते हैं जितने हिंदुस्तान भर में सियासी लोग हैं। अबू आसिम साहब, मैं इस शेर पढ़ रहा हूं, आज क्या है कि हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी।